Hello, welcome students. Today we are going to start the next topic, MySQL function. Actually, the concept of function is available in every type of programming language, like it is available in Python, C, C++, Java. At the same time, it is also available with database systems too. A function is a special type of predefined command set that performs some operation and returns a single value. Every time we use function, it takes some argument and it returns a single value. Functions operate on 0, 1, 2 or more values that are provided to them. That means we can provide some value in it. Either the value can be 0 or 1 or any number of values that we have passed in our function. Our function calculate or perform the operation on behalf of those values. The values that are provided to functions are called parameters or argument. That means whatever value we provide into our function is known as argument of that function or parameter of that function. The MySQL function has been categorized into various categories such as string function, mathematical function, date and time function, and so on. But before talking about this is also one categorization of MySQL function. But basically, the MySQL function is categorized into two types: single row function and multiple row function, which you are going to study in next class, that means in class 12. Single row function, we are going to talk about this here, and aggregate function or multiple row functions we'll talk about later. So single row functions are those functions which works on every individual row of a table, and multiple row function works on group of rows in a table. String functions, mathematical function, date and time function, these are example of single row function. And average, minimum, max, count, sum, these functions belongs to aggregate function. Although MySQL offers a big pocket of function, yet in this discussion we shall remain limited to some common functions only. The first function that we are going to talk about, the first category of function that we are going to talk about is string function. The string function, as the name suggests, works on string type of values, that means character type of data. The string function of MySQL can manipulate the text string in many ways. Some commonly used string function are being discussed below. The first function that comes into this category is char function. Char returns the character of each integer passed. That means whatever integer value we pass in it, it will return its character equivalent. Now I am going to represent these functions one by one in MySQL prompt. So for example, if we write select char 70, 65, 67, 69. So for that, first of all we use and then our database sample. Database is open. Now I am writing select char in bracket 70, 65, 67, 69. 70, then 65, then 67, then 69. Bracket close and then semicolon. Now you can see we'll get face as a result. Every character in our computer or every printable character that we might have in our keyboard
is having some ASCII code, that means ASCII value, American Standard Code for Information Interchange. It is a encoding stream through which every character is represented in our computer. So we use some decimal numbers to represent every character in our computer. So 70 represent capital F, 65 represent capital A, 67 represent capital C, and 69 represent capital E. Actually, when we use 65, it will be converted into A 66, B 67, C 68, D 69, E and so on. तो जब मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी ABCDE ये हमारे रिजल्ट में आ रहा है. सो कैपिटल लेटर्स, दैट मीन्स अपर केस लेटर्स are represented by 65, 67 and so on. At the same time, if we want to use small case letters, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम 97 से स्टार्ट करेंगे. 97, 98, 99, 100, 101, 102 and so on. So in this case you can see A, B, C, D, E, F ये सब क्या है, स्मॉल केस लेटर में है. तो अगर हम कैपिटल लेटर्स को एसेस करना चाहते हैं, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 65 एंड फॉर स्मॉल केस लेटर वी यूज़ फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स, एंड these are what, these are ASCII codes of numbers. ASCII code are numbers of character value that we might have in our computer. So I think it is clear to you all. Now moving forward, the next function is concat function. But before that, look one example here. We have written select char 65, then 67.3 and 69.3, and here we have written returns the character for each integer passed. तो अगर हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कोशिश करें कि हमने यहाँ पे दे दिया 98.5 और यहाँ दे दिया 99.2. अब हम चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट आता क्या है. तो इस केस में आप देखिएगा कि 98.5 इज़ कन्वर्टेड इनटू C एंड 99.2 इज़ कन्वर्टेड इनटू C. ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 98.4 और फिर इंटर की प्रेस करूं, आप देख सकते हैं कैप स्मॉल b आ रहा है. तो होता यह है 97 से हम स्मॉल a को रिप्रेजेंट करते हैं, 98 से हम स्मॉल b को रिप्रेजेंट करते हैं और 99 से स्मॉल c को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू के जगह पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले ली, दशमलव के बाद की वैल्यू ले ली, तो ऐसे केस में अगर दशमलव मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो वो नेक्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 5 से कम वैल्यू है तो वो प्रीवियस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब अगर हम 98.5 अगर हम करें तो ये 99 को रिप्रेजेंट करेगा, और 98.4 अगर हम कर रहे हैं तो वो 98 को ही रिप्रेजेंट करेगा. तो इसको आप इस तरीके से फिर दोबारा देख सकते हैं. अगर हमने 99.6 कर दिया तो अब इस केस में आप देखिए ABD आ रहा है. तो दिस इज द थिंग हियर. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज concat function. Concat function returns concated string. It takes at least 2 string value as input and gives us concated value as output. It can be used on character type of columns, or it can also be used with character value. So I am going to display it with an example here. Suppose that we are having a table student, so I am writing select asterisk from student. Now
You can see we are having few details here: name, age, sex, metric, aggregate, etc. Now look at this command which is given here. Select concat name aggregate as name marks from student where age is equals to 14 और age is equals to 16. तो हम इसमें उन्हीं बच्चों के डिटेल डिस्प्ले कर रहे हैं जिनका एज या तो 14 है या एज 16 है, और उनके नेम और एग्रीगेट को डिस्प्ले कर रहे हैं कॉन्कैट करके. तो अगर हम इसको एग्जाम्पल वाइज देखें तो हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट ब्रैकेट नेम कॉमा एग्रीगेट फ्रॉम student where age is equals to 14 or age is equals to 60. Now you can see this result concat name aggregate, this is the column name. तो देखो जो हम यहाँ कमांड लिखते हैं सेलेक्ट में वही हमारा कॉलम नेम हो जाता है ये, और उसके बाद नेम कॉलम और मार्क्स कॉलम मतलब एग्रीगेट कॉलम कॉन्कैट करके फिर हमें रिजल्ट मिल रहा है. जैसे आन्या 340, गुरविंदर 480, अली 260, फातिमा 400, मीता 150. अगर हम इसी के जगह पे यहाँ पे लिख दें एज नेम एग्रीगेट या नेम मार्क्स and then after from student where age is equals to 14 and age equals to 16. So here the column name concat name aggregate is changed and instead of that we'll get name marks as column name. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं. इसको हम बोलते हैं कॉलम एलियास या उपनाम. अगर हम इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस केस में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने मान लो यहाँ ले दिया नेम कॉमा कॉन्कैट ब्रैकेट में नेम कॉमा, अब यहाँ सिंगल कोट में हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिए, गॉट स्पेस सिंगल कोट क्लोज कॉमा एग्रीगेट कॉमा सिंगल कोट स्पेस marks as name marks from student where age is equals to 14 and age is equals to 16. अब इस केस में आप देखिए कि नेम मार्क्स कॉलम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आन्या गॉट 340 मार्क्स, गुरविंदर गॉट 480 मार्क्स, अली गॉट 260 मार्क्स एंड सो ऑन. तो देखिए जब कॉन्कैट हम यूज़ करते हैं तो हम कॉलम नेम भी यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं. तो अगर हमने पहला कॉलम नेम दिया नेम, फिर एक वैल्यू दे दी सिंगल कोट में गॉट, फिर हमने दूसरा कॉलम नेम दिया एग्रीगेट और फिर एक वैल्यू दे दी मार्क्स. तो इस केस में क्या होगा कि पहले नेम कॉलम से वैल्यू गेट करेगा. तो नेम कॉलम से पहली वैल्यू आई आन्या, देन गॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन एग्रीगेट इसका आ गया 340 और फिर मार्क्स यहाँ पे एज अ वैल्यू आ गई. तो इस तरीके से हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वे में भी हम अगर चीज़ को चाहें रिप्रेजेंट करना तो हम ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैट फंक्शन. अगर हम केवल वैल्यू के साथ ही लिखें कि सेलेक्ट कॉन्कैट ब्रैकेट में सिंगल कोट में आर्मी कॉमा सिंगल कोट में पब्लिक कॉमा सिंगल कोट में स्कूल, so at that time we are going to get army public school as an output. तो कॉन्कैट क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो, कॉलम हो, जो भी आप इसमें पास कर दोगे उसको एक साथ जोड़ के कॉन्कैट करके और फिर रिजल्ट आप पे डिपॉजिट करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर केस और एल केस.
तो लोअर केस या एल केस क्या करता है कि कैरेक्टर्स को लोअर केस में मतलब स्मॉल केस लेटर में स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर हमारा या स्ट्रिंग जो भी हम रखे हैं अगर वो लोअर केस में ही है then it will not do any transformation, and if it is in capital letters then only it get converted into lower case letter. Now I am going to give one example of it also. हमने लिखा select lower ब्रैकेट में सिंगल कोट में आर्मी सेमीकोलन, यू विल गेट स्मॉल केस आर्मी एज अ रिजल्ट। ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही इसी की जगह पे हम लोअर के जगह पे वी कैन आल्सो यूज एल केस, विल गेट द सेम रिजल्ट। तो लोअर फंक्शन या एल केस फंक्शन दोनों का काम ये होता है कि कैपिटल लेटर्स को स्मॉल केस लेटर में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर ये स्मॉल केस में ऑलरेडी हो और फिर हमने यहाँ पे एल केस यूज़ किया तो देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल रिजल्ट इन स्मॉल केस लेटर ओनली। हाँ, अगर कैपिटल में है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम सपोज दैट वी आर हैविंग द टेबल स्टूडेंट, तो हमने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन कैपिटल, but if we want all letters in a small case letter, so at that time we can write select lower और L case, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, column name from student. Now in this way you can see all letters are now represented in small case. Now we are skipping the fourth one. Fifth function is upper or U case function. It is just similar to L case function. U case और upper function is used to convert characters into upper case. जैसे L case या lower case में convert करता है, वैसे ही U case या upper characters को upper case में convert करता है। तो मैं इसको यहाँ पे example से आपको depict कर दे रहा हूँ कि यही जो ऊपर हमने कमांड लिखा हुआ था कि लोअर, इंस्टीड ऑफ दैट वी कैन राइट अपर एंड विल गेट कैपिटल लेटर वैल्यूज एज रिजल्ट। या यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अपर की जगह पे यू केस लिख दें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो लोअर या एल केस कैपिटल स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है एंड यू केस और अपर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि इफ़ वी आर हैविंग कैपिटल लेटर कैरेक्टर्स ऑलरेडी एंड वी आर यूजिंग यू केस देन देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन एट ऑल। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज सब स्ट्रिंग और सब str फंक्शन। सी दे आर टू फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब str फंक्शन एंड मिड फंक्शन, बोथ वर्क्स इन सिमिलर मैनर। तो ये जो फोर्थ फंक्शन है सब स्ट्रिंग और ये 13th है मिड, ये दोनों हम एक तरीके से ही देखेंगे, एक साथ ही देख लेंगे कि इन दोनों फंक्शन में हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं आपके स्ट्रिंग में से। सब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का एक पार्ट। तो रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सब str ABCDEFG 3,4। तो यहाँ पे जो भी हम नेम देते हैं या जो भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी उसके बाद हम 2 इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हम सारे केसेस को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट सब str ब्रैकेट सिंगल कोट में ABCDEFGH IJKLMN, इतना हमने ले लिया। क्वामा हमने दे दिया 5, 3 ब्रैकेट सेमीकोलन, एंटर की।
Now you can see we'll get, now if you closely look at it, that means 5 and 3, these are the two integer value that we are giving here. The first value, that is 5. What it means? It means that the 5 is the number of the character from which we are going to start. That means we have to start from 5th character. तो ये जो 5 और 3 है, ये 5 बताता है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच कैरेक्टर, एंड 3 ये बताता है कि हमें कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं. तो 5 मीन्स हम स्टार्ट करेंगे A B C D E, ये 5th कैरेक्टर यहाँ से, एंड देन आफ्टर वी हैव टू टेक 3 कैरेक्टर. दैट मीन्स हमको लेना है E F एंड G. तो वही चीज़ हमारे आउटपुट में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है. अगर हम इसके जगह पे यहाँ लिखते 5,5, अब इस केस में आप देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन 5th कैरेक्टर से, मतलब A B C D 4 एंड देन E 5th कैरेक्टर. 5th कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ले रहे हैं 5 कैरेक्टर, तो ये हो जाएगा E F G H I, मतलब ये 5 कैरेक्टर्स. अगर इसके जगह पे हम कोई और वैल्यू दे के देखें कि हमने 5 के जगह पे हमने दे दिया 1. अब इस केस से ये स्टार्ट होगा A से, क्योंकि A हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा A B C D E. तो दिस इज हाउ सबस्ट्रिंग फंक्शन वर्क्स. दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर हमने केवल एक ही इंटीजर वैल्यू दी, हम दूसरे इंटीजर वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये जो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, या मतलब जो एक इंटीजर वैल्यू हमने पास की है, वो ये डिफाइन करेगा कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच कैरेक्टर. तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5th कैरेक्टर. 5th कैरेक्टर मीन्स E, एंड देन सेकेंड जो चीज़ हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं कि फ्रॉम टिल what character or how many number of character we have to take. So at that time it will start from the 5th character and takes all the remaining character in the string. So at that time we'll get E F G H I J K L M N as a result. तो आप देख रहे होंगे कि 5th कैरेक्टर से यहाँ से स्टार्ट किया गया है, मतलब E से, और बाकी रिमेनिंग जितने कैरेक्टर्स हैं वो आपके आउटपुट में रिप्रेजेंट हो रहा है. तो याद रखिएगा, अगर हम केवल एक वैल्यू देते हैं तो वो केवल ये सिग्निफाई करता है कि हमें किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, और उसके बाद इन तक के सारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो जाती है. दूसरी चीज़ और है यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दी कि हमने ABCDEFGH से लेके N तक दिया, और उसके बाद हमने दे दिया नेगेटिव में 5 और यहाँ पे दे दिया हमने 3, तो जो नंबर जो कैरेक्टर का एड्रेस है, मतलब किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, अगर ये नेगेटिव में होता है तो ऐसे केस में हम बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करते हैं, मतलब पीछे से चलते हैं. तो इस केस में हमने दिया -5, तो ये स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये स्टार्ट करेगा J से, और फिर लेगा कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर, तो ये होएगा J K एंड L. तो अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे J K और L, ये 3 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. अगर इसी जगह पे हम यहाँ पे कुछ ना पास करें, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें लेने हैं ये हम ना पास करें, तो इस केस में क्या होगा कि J K L M N ये पूरा का पूरा, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लेके जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए ये है यूज सबस्ट्र फंक्शन या सबस्ट्रिंग फंक्शन का. मिड फंक्शन वर्क्स इन सिमिलर मैनर, कोई डिफरेंस नहीं है मिड और सबस्ट्र में. जैसे अगर हम यहाँ पे सबस्ट्र की जगह पे यहाँ हम लिख दें मिड, विल गेट द सेम रिजल्ट. अगर हम किसी और जो हमने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, अगर मान लो इस एग्जाम्पल में भी हमने लिख दिया मिड, विल गेट द सेम रिजल्ट.
तो mid and sub-str function works in similar manner and yields the same result. Now moving forward, the next function is ltrim, rtrim and trim function. तो देखो ltrim function, rtrim function, trim function ये सब क्या करता है, लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. ltrim removes leading spaces, rtrim removes trailing spaces and trim removes leading and trailing spaces. तो ltrim जो स्टार्टिंग की, इसको हम लेफ्ट ट्रिम भी बोल सकते हैं, ये स्टार्टिंग के जो स्पेस हैं उनको हटाता है. rtrim जिसको हम राइट ट्रिम बोलते हैं, ये इंड से अगर स्पेसेस हैं उनको हटाता है. और ट्रिम अगर दोनों तरफ स्पेसेस हैं, दोनों तरफ से ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं. तो इसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट, सबसे पहले हमने लिखा एल ट्रिम, ब्रैकेट में सिंगल कोट में हमने कुछ स्पेसेस दे दिए और हमने लिख दिया आर्मी, फिर कुछ स्पेसेस दे दिए, फिर सिंगल कोट लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन प्रेस किया, एंटर की प्रेस किया, यू विल सी द रिजल्ट. देखो आर्मी से पहले भी हमने स्पेसेस दिए थे और आर्मी के बाद भी स्पेसेस दिए थे. तो लेकिन जब हमने एल ट्रिम किया तो ये जो आर्मी है वो रिप्रेजेंट हो रही है और इससे पहले जो स्पेसेस थे वो हट गए. एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, अगर हम आर ट्रिम का यूज़ करें, यहाँ एल ट्रिम के जगह पे आर ट्रिम का यूज़ करें और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं समझ में आएगा क्लियरली, बिकॉज आपको यहाँ पे भी स्पेसेस दिखेंगे और यहाँ पे भी स्पेसेस दिखेंगे. ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम कोई कमांड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे कमांड में क्या लिखा है हमने, आर ट्रिम सिंगल कोट्स में आर्मी, तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉलम नेम हो गया. तो कॉलम नेम हमारा बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा कॉलम नेम हो गया, तो जो हमारे रोज़ आएंगे उसकी भी विड्थ हमारी बड़ी हो गई है. तो ऐसे केसेस में हम इस ट्रिम के इफ़ेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं. ट्रिमिंग हो रही है बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट. तो अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलम एलियास यूज़ कर सकते हैं. अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं तीनों के तीनों ट्रिम को एक ही साथ करके आपको रिप्रेजेंट करूँगा. तो मैंने लिखा एल ट्रिम आर्मी, देन एज सिंगल कोट में लेफ्ट ट्रिम, क्वामा, फिर आर ट्रिम ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में, फिर स्पेसेस आर्मी, फिर स्पेस एंड देन एज राइट ट्रिम, सिंगल कोट क्लोज, क्वामा, देन ट्रिम अगेन ब्रैकेट में स्पेसेस आर्मी, स्पेस सिंगल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एज फुल ट्रिम, एंटर की. नाउ हियर यू कैन सी द रिजल्ट. लेफ्ट ट्रिम में क्या हुआ है कि लेफ्ट से स्पेसेस हटा दिए गए और राइट में स्पेसेस हैं अभी भी. राइट ट्रिम में क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पे राइट में कोई स्पेस नहीं है, लेफ्ट में वी आर हैविंग स्पेस, एंड इन फुल ट्रिम बोथ स्पेसेस लीडिंग एंड ट्रेलिंग बोथ स्पेसेस आर रिमूव. तो ये याद रखिएगा, लेफ्ट ट्रिम एल ट्रिम लेफ्ट से स्पेसेस को हटाएगा, आर ट्रिम राइट से और ट्रिम दोनों साइड से. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, next function is INSTR function. INSTR function also known as in-string function. तो returns the index of the first occurrence of the substring. ये एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग के आने के फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है. तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेलेक्ट INSTR ब्रैकेट में, अब यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉरपोरेट फ्लोर,
CORPORATE floor, comma, or we are looking for another string OR, semicolon, enter, will get 2 as a result. कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्लोर में हमें देखना है OR, और OR के फर्स्ट ऑकरेंस को यहाँ रिटर्न करना है. तो देखिए ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, तो 2 पे ही हमें मिल जा रहा है OR, जो इस OR से हमारा मैच कर रहा है. तो इस केस में इसका इंडेक्स रिटर्न हो रहा है 2. ऐसे ही हम अगर यहाँ पे 80 को सर्च करें तो ऐसे केस में हमको मिलेगा 7 एज अ रिजल्ट. क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे हमें मिल रहा है 80, तो इस केस में ये रिटर्न कर रहा है इसका इंडेक्स 7. ऐसे ही अगर मान लो हम किसी टेबल पे भी इस कमांड को यूज़ करना चाहें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट. अब इस केस में अगर हमने मान लो लिखा सेलेक्ट INSTR ब्रैकेट में नेम क्वामा सिंगल कोट में F, या स्मॉल में हम F दे रहे हैं. वैसे MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है, फ्रॉम पेट. अब इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है INSTR नेम F. अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे नेम कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, नेम कॉमा. नाउ यू कैन सी नेम कॉलम आ गया, और नेम कॉलम में F का पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दे दिया. तो फ्लफी में F फर्स्ट कैरेक्टर है, क्लॉज में 0 मतलब F एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बफी में F आ रहा है थर्ड पे, ये फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है. यहाँ पे F 2 बार आया है, एक बार थर्ड पे एक बार फोर्थ पे, लेकिन ये रिटर्न करेगा थर्ड. फैंग में F फर्स्ट आया है, ब्राउज़र में है नहीं मतलब 0, क्रिपी विस्लर स्लिम नॉट हैविंग दैट, देन पफ बॉल contains F as third character. So we can also use like this too. Now moving forward, next function is length function. So length function returns the length of a string in bytes, that means how many number of characters it is taking. तो ऐसे केस में हम यूज़ करें, जैसे हमने लिखा select bracket length ब्रैकेट सिंगल कोट आर्मी पब्लिक स्कूल सिंगल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर. यू कैन सी 18 कैरेक्टर्स इज इट्स लेंथ. अब 18 क्यों आ रहा है? अगर आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 स्पेस 12 13 14 15 16 17 एंड 18. तो पूरा का पूरा जो आर्मी पब्लिक स्कूल है इट विल कंटेन 18 कैरेक्टर्स, एंड दैट इज़ वाई इट्स लेंथ इज़ 18 कैरेक्टर. हमेशा याद रखिएगा कि स्पेस इज आल्सो काउंटेड वाइल वी आर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज लेफ्ट फंक्शन. अच्छा, एक चीज़ और, इसको हम यूज़ कर सकते हैं विथ कॉलम्स टू. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट नेम फ्रॉम पेट, एंड फॉर सिंप्लिसिटी आई एम ऑल्सो यूजिंग नेम कॉलम हियर. सेलेक्ट नेम कॉमा लेंथ नेम फ्रॉम पेट. So you can see Fluffy 6 character, Claus 5 character, Buffy 5 character, Fang 4 character, Bowser 6 character, Creepy 6 character, and so on. So in this way we can also use it. Now next two functions are left function and right function. So left and right functions both are used to cut or to get the substring from a given string. Left takes substring
from the leftmost part and right takes substring from the rightmost part. तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें यहाँ पे कि अगर हमने लिखा सेलेक्ट ब्रैकेट सिंगल कोट ABCDEFGHIJKLMN हमने यहाँ पे ले लिया कॉमा 3. नाउ हम यहाँ लिख रहे हैं लेफ्ट. तो इस केस में आप देख सकते हैं रिजल्ट में आ रहा है ABC. एंड अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे यूज़ किया राइट, then the same value and then comma 3 will get the value from the right, that is LMN. So left and right both takes two values, first string value and second an integer value, and it takes the number of characters from left or right depending on the function that we are using. It can also be used with column names, like अगर हमने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट और यहाँ पे हमने मान लो ब्रैकेट में दे दिया नेम कॉमा 3 एंड देन फ्रॉम पेट. तो इस केस में आप देखिए फ्लू, क्ला, बफ, फैन, बॉ, इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है. और अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लें राइट, तो इस केस में आप देखिए लास्ट में जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है. लास्ट फंक्शन मिड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दीज आर स्ट्रिंग फंक्शंस. So that's all for today video. In next video we will start from numeric functions. Thank you. Try to practically execute all the commands which I have explained here, and in case of any doubt please feel free to ask questions. Thank you.